Hello everyone and welcome to Innovative Science Tutorials. So students, today we are going to start up another topic, that is natural vegetative propagation from the chapter reproduction in plants. As you all know that in the previous video I had already taught you all about the various methods of asexual reproduction, out of which vegetative propagation is the fourth method. Okay, and in vegetative propagation we have two types of propagation, that is natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation. So for today's class we are going to deal only with the natural vegetative propagation. So let us start, children, without wasting any time. So the contents that we are going to cover today are an introduction to vegetative propagation, then types of vegetative propagation. Again, there are three types of vegetative propagation, children, based on the part of the plant body that is involved, like vegetative propagation by stem, then vegetative propagation by root, and finally vegetative propagation by leaf. ठीक है, तो ये तीन टाइप है जो हम लोग पढ़ेंगे आज. So let us just understand that what is the meaning of vegetative propagation. Children, there are two words we have got. First is vegetative and second is propagation. Vegetative means any part of the plant body, any part of the plant other than the flower. Other than the flower. ठीक है, अब फ्लावर को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि फ्लावर जो है वो क्या करता है, वो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड हियर वी आर स्टडिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन विच इज व्हाट, विच इज अ मेथड ऑफ asexual reproduction. So we cannot include flower over here. So any part of the plant body other than the flower is called a vegetative part. And what is the meaning of propagation? Reproduction or continuation of generation, ठीक है, from the same parent plant. यहाँ पे क्योंकि हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक पेरेंट प्लांट के बॉडी से ही बहुत सारे न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन नाउ, चिल्ड्रन? यू कैन टेल मी. आई थिंक सो दैट वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, natural reproduction in plants in which the parts such as stem, leaf or root, they give rise to new plant. What do? They give rise to new plant. And what do we call these parts? We call them vegetative parts or we call them propagules. और इनको क्या बोला जाता है? इनको propagules भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है propagules? क्योंकि इनसे होता है propagation. कैसा propagation? Vegetative propagation. ठीक है. Now if we further classify, children, then again the vegetative propagation is of two types. What are these two types? First is natural vegetative propagation that we are studying today, and the other is artificial vegetative propagation. तो ये है दो टाइप का vegetative propagation, जिसमें से artificial vegetative propagation है जो है that is done by human beings, ठीक है, such as grafting, tissue culture, etc. and we will study the details in the next class. So for now let us move on to the next topic, children. As I told you, children, there are three types of vegetative reproduction classified on the basis of the type of propagule that is involved in the process of natural vegetative reproduction. ठीक है, so that means if it's a stem, the type of vegetative reproduction is vegetative propagation by stem. Again, this is further classified into what? Into three types. Three types of modification of a stem. First is rhizome, second is what? Second is bulb, and the third one is a tuber. So we will study these in detail, children. I will give you some extra also. Okay, and second type is that is vegetative propagation by roots. Now here again we will see so many examples. We will see the example of carrot, sweet potato, asparagus, etc. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्वीट पोटैटो का ट्यूबर भी पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में. थर्ड नंबर जो है बेटा, दैट इज योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ. एंड हियर वी विल स्टडी अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ एज इन केस ऑफ ब्रायोफाइलम. बहुत अच्छे से हम लोग इसको डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, especially during the monsoon time. You can see this plant growing very nicely. ठीक है, so let's start, children.
The first type of natural vegetative reproduction is reproduction by stem. I already told that. So let us study with the help of few examples. So the examples here I have taken are grass, mint and ginger. As you can see in this diagram, children, this is the vegetative propagation in grass and this one is the vegetative propagation in mint, which I am going to complete for you. Okay? So in order to understand this, first we need to understand some of the basics about these type of plants, that is grass and mint. Because generally the plant of grass and mint, they grow horizontally parallel to the ground. So if this is the ground, then the stem of grass or mint, let's say grass or mint, okay, this is the stem, they will always grow horizontally parallel to this ground, always. Now this is the stem, as I said, the stem will bear nodes. So many nodes will be there, and in between every two nodes there will be an internode. So node and internode, ठीक है. These are the characteristics of what? Of a stem. तो यहाँ तक तो clear हो गया बेटा. Now at every node there will be, let me change the color children, just a second. At every node there will be a shoot system and there will also be a root system, ठीक है. तो इंडिकेट कर देते हैं, ये है शूट सिस्टम, ठीक है. यहाँ पे भी देखिए शूट सिस्टम, यहाँ पे भी एक ये कंटिन्यू रहेगा बेटा. ग्रास एंड मिंट बोथ आर व्हाट? दे आर रनर्स, ठीक है. ऐसा लगता है दे आर रनिंग, दे आर प्रोपगेटिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है. नाउ सिमिलरली दे हैव द रूट सिस्टम एट द सेम नोड, ठीक है. हर एक जगह होगा, ठीक है. यहाँ पे मतलब क्या? एट एवरी नोड देयर इज अ शूट सिस्टम एंड देयर इज ऑल्सो अ रूट सिस्टम. ये दोनों प्रेजेंट है. नाउ लेट अस understand that how vegetative propagation can take place. Suppose this one section of this runner, let's say grass or mint, ठीक है, gets cut off, ठीक है, or detached from this continuous plant, ठीक है, from this chain of continuous runner. तो क्या होगा उस केस में? उस केस में क्या ये प्लांट मर जाएगा या रहेगा? Will it be alive or dead? It will be alive. What it will do? It will grow into a new plant. कैसे? Answer आपके पास है बिल्कुल सामने. Since it is having both the shoot system as well as the root system, so it is capable to develop into a new plant. What it will do, children? It will further grow. It will show further development of more nodes, more shoot system and more root system. तो ये जो पूरा का पूरा स्टेम है वो और फर्दर ग्रो होना चालू हो जाएगा. हर एक नोड पे हम लोग फिर से देखेंगे कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम क्या होगा? डेवलप हो जाएगा. इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ग्रास है या मिंट है, विच आर एग्जांपल्स ऑफ रनर टाइप ऑफ प्लांट्स, दे ग्रो बाय व्हाट? दे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मेथड एंड बाय विच पार्ट? बाय द स्टेम, ठीक है. क्योंकि स्टेम के हर एक नोड पे एक शूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम होगा, which is capable of what? Which is capable of independent existence. So this is all about, children, grass and mint. Now let us consider the most important example over here. That is what, beta? That is your ginger. Now ginger is what? Ginger is a special type of underground modification of stem. Usually we find the stem as a part of the main part of the shoot system of a plant in contact with the air above the soil. ग्राउंड के अंदर जनरली नहीं होता है, ठीक है. लेकिन कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे कि पहला है राइजोम, ठीक है. द फर्स्ट टाइप इज राइजोम. यहाँ पे क्या होता है? द स्टेम of this plant, that is ginger, is found under the ground. ग्राउंड के अंदर रहता है, ठीक है. and what it is known as? It is known as a rhizome. now there are some features very important कि जिंजर का ये जो स्टेम है वो इस तरह से क्यों है. पहला फीचर क्या है? you can see that it is swollen or fleshy. It is swollen
or fleshy. Why is it so? Due to accumulation of food, due to storage of food. ठीक है, it has stored up a lot of food, that is why it has grown in size. और ये इसका purpose भी है modification का. So this is simply what? This is the modification of stem. ठीक है, and why is it so? क्यों हो रहा है? What is the reason behind this modification? The reason is vegetative propagation. और कैसा vegetative propagation बेटा? Natural vegetative propagation. यहाँ तक clear हो गया. Now students, if I ask you that how can you say that rhizome of ginger is a type of stem modification, what will you say in support of your answer? Straight away you should say that teacher, although it is under the ground, that is it is inside the soil, it has got birds, ठीक है, it has got auxiliary birds, it has got nodes, and in between every node, every two node, there is an internode. ठीक है, there is an internode in between every two node, and these are the scaly leaves. All these features are the characteristic features only of a stem and not of a root, not of a root. Although the stem of ginger, that is the rhizome of ginger, is present inside the soil, but still it is not a root. ठीक है, I hope now this is clear. So this is again a special type of modification of stem. And now how does it helps in vegetative propagation is our main point over here to understand. तो कैसे करता है बेटा? You can see these birds here. ठीक है, ये एक बर्ड है, इसी तरह बहुत सारा बर्ड्स होगा इसमें. इन बर्ड्स को हम लोग एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं. यहाँ पे भी था और यहाँ पे अब देखो इस एक्सिलरी बर्ड से ऑलरेडी एक न्यू प्लांट जो है वो ऑलरेडी डेवलप कर गया है. कैसे किया है? बिकॉज देयर वाज एन इंक्रीज इन व्हाट बेटा? इंक्रीज इन द साइज of the bird. Which bird? Auxiliary bird. Auxiliary bird के साइज में इंक्रीज हुआ. कैसे साइज इंक्रीज हो गया? किस प्रोसेस से? सेल डिवीजन से. ठीक है, और वो क्या किया? वो एक न्यू प्लांट को फॉर्म कर लिया. तो जितने बर्ड होंगे, हर एक बर्ड क्या कर सकता है? हर एक बर्ड क्या कर सकता है? एक न्यू जिंजर के प्लांट को ग्रो कर सकता है. इसीलिए इस टाइप के मेथड को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन by means of stem in the form of a rhizome. And children, next is vegetative reproduction in onion. ठीक है, अब ऑनियन भी क्या है? ये भी एक स्टेम है. ठीक है, किस टाइप का स्टेम है बेटा? दिस इज ऑल्सो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. और हम लोग ज्यादातर क्या देखते हैं? कोई भी अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो क्यों मॉडिफाई हुआ है? वो मॉडिफाई हुआ है फूड को स्टोर करने के लिए. किसको स्टोर करने के लिए? फूड को स्टोर करने के लिए. तो लेट अस सी. पहला जैसे कि हमने राइजोम को पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़ते हैं कि आखिर इस स्ट्रक्चर को बोलते क्या है. इस तरह के अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन ऑनियन को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बल्ब. क्या बोलते हैं? BULB, बल्ब बोलते हैं. ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो ऑनियन का बल्ब है ये एक स्टेम है? हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं. क्यों बोल सकते हैं? इसका आंसर देने के लिए हम लोग देखते हैं डायग्राम की तरफ. इन द डायग्राम व्हाट यू कैन ऑब्जर्व बेटा? देयर इज अ डिस्क लाइक स्टेम. ये जो बेस है, डिस्क, बेसल डिस्क लाइक स्टेम इज देयर, एंड फ्रॉम द स्टेम मेनी adventitious roots they have developed. ठीक है, बेस ऑफ स्टेम से क्या निकला हुआ है? डिस्क ऑफ स्टेम से बहुत सारा एडवेंटिटियस रूट्स निकला हुआ है. तो एडवेंटिटियस रूट्स कौन से होते हैं? एडवेंटिटियस रूट्स वो रूट्स होते हैं जो कि अदर देन रेडिकल, मतलब क्या? अदर देन रेडिकल, यदि रूट प्लांट के बॉडी के किसी भी पार्ट से अराइज हो रहा है तो उसको हम लोग एडवेंटिटियस
रूट बोलते हैं, और जो रेडिकल से निकलता है वो होता है मेन रूट। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट है, इसको, इस बल्ब को स्टेम बोलने के लिए कि हाँ ये एक टाइप ऑफ स्टेम का मॉडिफिकेशन है, वो है एक्सिलरी बर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखो बहुत सारा एक्सिलरी बर्ड है, और हर एक एक्सिलरी बर्ड जो है इज केपेबल टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा बड़ा सा जो है, ये है आपका टर्मिनल बर्ड। ठीक है, सबसे बड़ा वाला, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल बर्ड। इसके अलावा क्या दिख रहा है, बहुत सारे लीव्स दिख रहे हैं। अब ये लीव्स नॉर्मल लीव्स की तरह नहीं है, जो एरियल शूट सिस्टम जो होता है, नॉर्मली जो लीव्स होते हैं जैसे तुलसी का हो गया, नीम का हो गया, या किसी भी अदर प्लांट का जो कि एरियली जिसका शूट सिस्टम प्रेजेंट है, जिसका स्टेम एयर के कांटेक्ट में, उनमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो लीव्स होते हैं वो नॉर्मल टाइप के लीफ होते हैं। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल, कुछ इस तरह के लीफ होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लीफ है वो है स्केली लीफ। स्केली, फ्लैशी, स्केली ही नहीं फ्लैशी। स्केली मीन्स देखो लेयर में है, ठीक है, फ्लैशी मीन्स थिक है, बहुत थिक है। ठीक है, कंपैरेटिवली मच थिकर देन दिस लीफ, ये काफी थिन होगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल लीफ है जो कि एरियल शूट सिस्टम में प्रेजेंट रहता है, ऐसा शूट जो कि हवा के कांटेक्ट में है, मतलब कि ग्राउंड के ऊपर है। तो यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रक्चर जो हम लोग को दिख रहा है, बहुत सारा पार्ट्स, वो सारा ही पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है एक प्लांट में, स्टेम में प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस, onion bulb is an underground modification of a stem because it has got a disc shaped stem which gives rise to several adventitious root. Not only that, many auxiliary buds are present, okay, along with one terminal bud, and a lot of scaly leaves are, fleshy scaly leaves are also seen. So this is the reason that onion bulb is a type of stem that is just modified under the ground in order to store food. ठीक है, now next question is that how this onion bulb it does vegetative reproduction और vegetative propagation, ये कैसे करता है? सबसे important question तो यहाँ पे यही है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ ही यही रहे हैं कि आखिर इसका क्या रीजन है, कि किस तरह से ये propagation में मदद कर रहा है प्लांट के। तो यहाँ पे आपने जितना भी बर्ड्स देखा है बेटा, ये हर एक बर्ड जो है ये एक लीफ को, एक शूट सिस्टम को गिव राइज करेगा। जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, लेट मी चेंज द कलर। ये क्या करेगा, हर एक जो एक्सिलरी बर्ड है एक लीफ इस तरह से इसमें से एराइज होंगे। ठीक है, और अगर आप सिंपल शब्द में समझो तो जब हम लोग एक ऑनियन को, अगर आपने कभी शो किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक ऑनियन से बहुत सारे ऑनियंस उसके बेस में जो है वो कुछ इस तरह से डेवलप हो जाते, क्योंकि जितना बर्ड उतना ऑनियन। आई होप नाउ इट इज क्लियर। सो दिस इज द वे onion, which is a type of underground modification of a stem known as bulb, helps in the process of vegetative reproduction. Now students, let us understand the third type of vegetative propagation by stem which is seen in potato and it is called what? It is called tuber. तो हमने ये तीसरा हो गया, दो हमने पहले ही पढ़ लिया, पहला था राइजोम, दूसरा था बल्ब, और अब ये थर्ड है ट्यूबर। ठीक है, तो अगेन पोटैटो इज ऑल्सो एन अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम? द पर्पस हियर इज स्टोरेज ऑफ फूड अगेन। नाउ इफ अगेन आई आस्क यू दैट हाउ कैन वी से दैट दिस पोटैटो is a stem, you can easily say that teacher, yes, this is a stem. Why so? Because it has got so many birds. These birds of potato are called what? They are also known as eye of potato. ठीक है, because they appear as if they are eye. ठीक है, eyes की तरह बिल्कुल दिखते हैं, और हर एक बर्ड जो है it is capable of giving rise to a new plant. अब देखिए होता क्या है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर etc., the birds of the potato which were initially inactive, initially dormant, what they
do beta? They start doing vegetative reproduction. How they do so? They do so by giving rise to a shoot system and a root system. ठीक है, कौन देता है? हर एक बर्ड जो आपको दिख रहा है, हर एक बर्ड डेवलप करता है शूट सिस्टम को और रूट सिस्टम को, दोनों को ही। ठीक है, और हर एक बर्ड का मतलब ये होता है कि हर एक बर्ड एक इंडिपेंडेंट प्लांट, पोटैटो के प्लांट को गिव राइज कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या, जितने नंबर ऑफ आईज या फिर जितने नंबर ऑफ बर्ड्स होंगे पोटैटो, उस पोटैटो में उतना ही उससे न्यू पोटैटो प्लांट्स जो है वो ग्रो कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हाउ इट टेक्स प्लेस, विच आर द पार्ट्स एसोसिएटेड in case of a tuber of potato। अब देखिए आगे फर्दर अगर डेवलपमेंट होगा तो किस तरह का दिखेगा वो। ये है इसका शूट सिस्टम का फर्स्ट सेट ऑफ लीफ जो आपको दिख रहा है, ये पूरा न्यू प्लांट है, इसके अंदर इसका रूट सिस्टम भी डेवलप हो गया है। ठीक है, और मतलब बिल्कुल हल्का हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, अभी तो बिल्कुल ये टाइनी प्लांट है। ठीक है, तो एक न्यू प्लांट है, ये इसका फर्स्ट सेट ऑफ लीफ है। ठीक है, और बहुत सारे आईज हैं, हर एक आई या हर एक बर्ड क्या होता है, एक न्यू प्लांट ग्रो करने के केपेबल होता है। और ये हम लोग कर भी सकते हैं, अगर हमने इसको डिटैच कर लिया, यहाँ से एक पोर्शन यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, तो 3 पोटैटो प्लांट्स तो हमने ऐसे ही ग्रो कर लेने हैं। ठीक है, आई होप अगेन दिस इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ पे जो याद करने वाली बात है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बर्ड्स हैं उनको बोला जाता है आई, और इस टाइप ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को बोला जाता है ट्यूबर। तो यू कैन स्ट्रेट अवे गेट 1 मार्क क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन शोन बाय पोटैटो। सो योर आंसर शुड बी ट्यूबर। सिमिलरली फॉर ऑनियन योर आंसर शुड बी बल्ब, एंड फॉर जिंजर योर आंसर शुड बी rhizome. Now next one is children. Now students, next is reproduction by leaf, and the best example we can get here is none other than bryophyllum. I have shown you 2 diagrams children, very clear diagrams. First is an entire plant of bryophyllum and the second one is a magnified portion of leaf of bryophyllum. ठीक है, अब bryophyllum कैसे रिप्रोड्यूस करता है बाय लीफ, इसको समझते हैं। तो ये एक मैग्नीफाइड पोर्शन हो गया। ठीक है, इधर तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आप इस वाले एंटायर प्लांट में देखो या फिर ये मैग्नीफाइड पोर्शन में देखो, यहाँ पे देखना बेटर होगा। यहाँ पे देखो हर एक नॉच पे, दिस इज 1 नॉच एट द मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम, अगेन अनदर, थर्ड वन, फोर्थ वन, एंड इट गोज ऑन लाइक दैट। ठीक है, एट एवरी नॉच देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बर्ड, स्पेशल बर्ड है, बिल्कुल अलग सा, ऐसा लग रहा है एज इफ इट इज अ टाइनी प्लांट। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस नेचुरली इफ वन लीफ और अ पोर्शन ऑफ लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम गेट्स कट एंड फॉल इनटू मॉइस्ट सॉइल, सपोज, ठीक है, एंड गेट्स व्हाट, गेट्स सुटेबल टेम्परेचर, in that case these birds they develop into completely new plant of bryophyllum। मतलब पहले केस में क्या होगा कि कोई एक पोर्शन ऑफ द लीफ जो है वो डिटैच हो जाएगा पूरे लीफ से और जमीन पे गिर जाएगा, मॉइस्ट सॉइल में गिर जाएगा। और अगर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है जैसे कि टेम्परेचर वो सूटेबल है तो उस केस में क्या होगा, वो हर एक बर्ड जो है जो हम लोग को दिख रहा है, ये स्पेशल टाइप ऑफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ये डेवलप कर जाएगा एक न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट में। तो एक मेथड तो ये हो गया बेटा। दूसरा मेथड जो है, दूसरा मेथड में मान लीजिए ये एक है बर्ड ब्रायोफाइलम का, ये बाय चांस किसी भी तरह से नेचुरली डिटैच होके अब लीफ से अलग होके सॉइल में गिर जाता है, तो ये भी क्या करेगा, ये जो अकेला बर्ड है ये भी एक न्यू प्लांट में क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ब्रायोफाइलम में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है, या तो जो बर्ड्स है, स्पेशल बर्ड्स है ब्रायोफाइलम के, वो लीफ के साथ सॉइल में गिर जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में, और हर एक बर्ड से एक न्यू प्लांट बन जाता है, या फिर कभी
कभी कभी हम लोग ऐसा देखते हैं कि कोई बर्ड गिर जाता है अकेले बिना लीफ के सॉइल में और वो क्या कर जाता है, फिर से न्यू प्लांट में, न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट में ग्रो कर जाता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चिल्ड्रन। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे आई होप। इन केस ऑफ एनी डाउट यू ऑल कैन आस्क मी, आई ऑलवेज से दैट, ठीक है। Now students, let us understand reproduction by roots, that how it takes place. In order to understand this, first of all we'll take the example of sweet potato. Now children, sweet potato is again modification, underground modification. Already we know that it is a type of root, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे स्वीट पोटैटो के इस मॉडिफिकेशन ऑफ रूट को भी हम लोग ट्यूबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके जो ये रूट्स है, ये एक एक इंडिविजुअल रूट है बेटा। हर एक रूट कैसा है, काफी फ्लैशी है। क्यों फ्लैशी है, ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर में इसमें स्वीट पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता कैसे है। दिस इज द रनिंग स्टेम, सपोज लेट अस से दिस इज द रनिंग स्टेम ऑफ स्वीट पोटैटो। इट हैज सो मेनी नोड्स, ठीक है, बहुत सारे नोड्स होते हैं और हर एक नोड से क्या डेवलप होता है, स्वीट पोटैटो डेवलप होता है, ठीक है। अब ये स्वीट पोटैटो क्या है, मैंने अभी तुरंत बताया कि ये रूट है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। नॉर्मली जो रूट्स होते हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं, रेडिकल से। यहाँ तो स्टेम से डेवलप हो गया, तो इस रूट को क्या बोलेंगे, सबसे पहला फीचर एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इट डिड नॉट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। सो एनी रूट दैट डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अदर than the radical is called an adventitious root. So this is the first point. Next is what beta, next you can see it is quite fleshy. Why is it fleshy? I already told you, due to the storage of food. तो ये है इसका दूसरा फीचर। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है उसको समझाने के लिए एक थिक स्वीट पोटैटो मैं बना रही हूँ। सपोज यहाँ पे कोई बर्ड है, ठीक है, यहाँ पे इसके बर्ड्स हैं। अब ये बर्ड क्या है, ये बर्ड क्या, अगर नेचुरली किसी भी रीजन से पेरेंट प्लांट के बॉडी से डिटैच होके मॉइस्ट सॉइल में, ये तो ऑलरेडी सॉइल में ही प्रेजेंट रहता है, अगर ये सॉइल में गिर जाता है तो ये जो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बर्ड है, ये क्या कर सकता है बेटा, इट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट ऑफ स्वीट पोटैटो। तो एज मेनी बर्ड्स एज मेनी स्वीट पोटैटो प्लांट। अगर हम लोग इसको नहीं निकालेंगे सॉइल के अंदर से, ऐसे भी छोड़ देंगे, तो भी ये यहाँ से भी अपने पेरेंट के बॉडी में अटैच रहते हुए भी एक न्यू प्लांट में जो है ग्रो कर जाएगा, एक न्यू स्वीट पोटैटो प्लांट में ग्रो कर जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन बाय रूट्स इन स्वीट पोटैटो। सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड इन अनदर एग्जांपल चिल्ड्रन, दैट इज एस्परागस एंड कैरेट। कैरेट में क्या होता है, एस्परागस so almost it is same like sweet potato only children. In case of carrot, carrot is a biennial plant। सबसे पहले आप ये जान लीजिए 2 साल तक ये रहता है, ठीक है। फर्स्ट साल में बेटा इसमें बहुत ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, ठीक है, कैरेट का फॉर्मेशन होता है। और कैरेट जो है वो क्या है, टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। टैप रूट जो उसका होता है वो बिल्कुल थिक हो जाता है, कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये लीफ होते हैं जो कि क्या कहाँ रहते हैं, सॉइल के बाहर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये सपोज ग्राउंड लेवल है और ये है लीव्स बाहर में, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, इसमें से और भी बहुत सारे सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स निकलते हैं जो कि फूड को स्टोर नहीं करते हैं, लेकिन कोई कोई कभी कभी हम लोग देखेंगे कि इनमें से कुछ भी क्या होते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं जब बहुत दिन तक कैरेट को सॉइल से नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक अलग बात। यहाँ पे जो मेन पोर्शन है वो है टैप रूट पोर्शन, जो कि क्या हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है। क्यों फ्लैशी हो जाता है, अगेन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड, ठीक है। यहाँ पे भी जितने बर्ड्स होंगे वो हर एक बर्ड क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है एक न्यू कैरेट के प्लांट में। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट भी देखने को मिलता है बेटा। फर्स्ट ईयर में कंटिन्यूअस कैसा ग्रोथ होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होगा। लेकिन जो सेकेंड ईयर में है, ये जो प्लांट आपको कैरेट का दिख रहा है, इसमें फ्लावर्स भी प्रोड्यूस होंगे और सीड्स भी प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा सेकेंड ईयर में, फ्लावर्स भी प्रोड्यूस होंगे और सीड्स भी प्रोड्यूस होंगे। और अल्टीमेटली ये कैरेट जो है, ये कैरेट का प्लांट खुद
मर जाएगा, ठीक है, इट विल डाई। अब इनमें जो बर्ड्स थे, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे ये स्टेम है इसका, डिस्क लाइक स्टेम। लेट मी चेंज द कलर चिल्ड्रन। ये वाला इसका स्टेम है चिल्ड्रन, ठीक है, ये डिस्क लाइक स्टेम है। इसके नीचे जो बर्ड्स होंगे सपोज, ठीक है, जो बर्ड्स है इसके नीचे, ये हर एक बर्ड क्या कर सकता है, हर एक बर्ड एक न्यू प्लांट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सो दिस इज सिमिलर टू we have seen in sweet potato, and it's the same in case of asparagus as well. So this is how the vegetative reproduction takes place by roots in carrot, in asparagus and sweet potato. I hope everything is clear. Simply ये जो birds आपको दिख रहे हैं, ये birds क्या कर सकते हैं, न्यू plants को ग्रो कर सकते हैं, न्यू प्लांट्स में डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। इट वॉज वेरी इजी, क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल, बट स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी एनीवेयर, यू हैव एनी डाउट, डू आस्क मी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन बनता है कि कैरेट में जो बर्ड्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो बहुत क्विकली आप आंसर दे सकते हो, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओल्ड स्टेम, ठीक है। ये ओल्ड स्टेम ही तो था ना, यही तो पेरेंट प्लांट था ना कैरेट का, ठीक है। तो यहाँ पे बेस ऑफ जो स्टेम है वहां पे ये बर्ड्स लोकेटेड रहेंगे, और हर एक बर्ड क्या कर सकता है, एक न्यू इंडिपेंडेंट कैरेट के प्लांट को डेवलप कर सकता है, ठीक है। So this is the way all these three reproduce by reproduction by roots, ठीक है, reproduction by roots करते हैं, and they also serve as a means for storage of food. Students, now let us understand the advantages of vegetative reproduction. Basically, there are 4 advantages of vegetative propagation, as you all can see on your screen. The first one is that vegetative propagation takes place in a very short span of time. That means it is quite a fast process, ठीक है, fast process है, time saving है। और क्या है सेकेंड वाला जो है बेटा, जो न्यू प्लांट्स जो है जो डेवलप करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, दे विल स्प्रेड वेरी फास्ट in a small area. Even if you grow a ginger rhizome in a pot, in an earthen pot, you will find that very rapidly it grows, and so many gingers you will get after 3-4 months, ठीक है। Next is what, that is the third one, it is a surer method of propagation. इसका पूरा श्योरिटी है कि इस मेथड से न्यू प्लांट जरूर डेवलप होंगे, ठीक है। एंड द फोर्थ वन, whatever good character the mother plant will have, all those good characters will be transferred to the offspring plant. So here with this we complete the advantages of vegetative reproduction. Next are the disadvantages. So let us see children, the very first disadvantage of vegetative reproduction is that whatever number of offsprings are produced children, all the offsprings are genetically similar to their parents. मतलब parents जैसे होंगे उनके बच्चे, मतलब कि उनके offspring plant जो हैं वो बिल्कुल उन्हीं की तरह होंगे। अगर उनमें कोई डिजीज है तो वो सेम डिजीज जो है वो offspring plant में भी आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, जिसके कारण आजकल बहुत सारा एडवांसमेंट हो गया है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, और पीपल आर डूइंग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दे आर डूइंग ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। सेकेंड डिसएडवांटेज इज दैट बेटा, the dispersal of the plant, that is the spread of the plant does not take place on its own, अपने से नहीं हो पाता है, ठीक है। जो भी डॉटर प्लांट्स या न्यू प्लांट्स डेवलप होंगे इस मेथड से, वो क्या होंगे, पेरेंट प्लांट के, सपोज ये पेरेंट प्लांट है, ठीक है, इसी में से किसी भी बर्ड के कारण या किसी भी रीजन के कारण एक न्यू बेबी प्लांट ग्रो किया, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अपने पेरेंट प्लांट के हमेशा आसपास ही मिलेगा। मतलब बहुत दूर तक अगर हम लोग ये सोचेंगे कि इस प्लांट का जो है वो डिस्पर्सल हो जाए, तो दैट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोग अगर एक सिंपल लाइन में बोले तो वेजिटेटिव
प्रोपगेशन जो है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया। और क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे देख लो 3 प्लांट हो गया, ठीक है, 3 प्लांट अगर यहाँ पे हो गया है तो यहाँ पे कंपटीशन क्या होगा, इट इज नेचुरल की कंपटीशन फॉर फूड, फॉर सनलाइट, फॉर वाटर विल बी देयर अमंग दीज 3। अगर यहाँ 3 भी प्लांट है तो ये तीनों प्लांट को वाटर भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, अदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आपस में एक छोटे से जगह में जो है वो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज प्लांट्स। सो दिस इज वन ऑफ द डिमेरिट और डिसएडवांटेज of vegetative reproduction. So that's all for today, children. With this we come to the end of this session and see you all very soon in the next class with the next video of this chapter, and that will be about the artificial methods of vegetative reproduction in plants. Till then, stay tuned, and in case of any doubt, do let me know in the comment box. You are always welcome for that. So thank you, students. Take care.